Good morning, students. So, I hope all you are well and fine. So, actually, and today I am going to talk with you in another new chapter and from different classes. Usually, I was taking the class of 7th, that book from the book of Communicative English, but the Communicative English will be running at the same time as for the 7th class English Furry. This is also some other publication, and I think it is Macmillan Education publication. So anyway, but the communicative English is for 7th class. At the same time, English Fairy is also for 7th class English main course book. So here we are going to discuss a chapter number 1 after 20 years. Very interesting story, and this story has been written by O. Henry, who was born in 1862 and died 1910, who was a pen name of American writer William Sidney and a Porter. His short stories are famous for their wit, wordplay, sharp characterization, and an unexpected end to the gripping story. So actually, he was an American writer, and his story is always interesting. So before going to this lesson, just I would like to request you to subscribe this channel if you are newly watching this video lecture, and also press the bell icon, and that you can be a subscriber of my channel, and whenever I upload any video regarding of your class, you will notify that. So let's begin. Just I would like to ask you a question. My question is, so there are two phases in this book. One is responsibility, duty, and another is friendship. Okay, one is responsibility or duty, and another is friendship. So बच्चों, दो विशेष बात इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है. एक तो है रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो रिश्तेदारी, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा. तो हम क्या करें उस समय पर जब हमें अपना कर्तव्य निभाने का वक्त होता है? क्या हम उस समय हम अपनी दोस्ती को देखेंगे? क्या हम उस समय हम अपने पारिवारिक जीवन को देखेंगे? Whenever there is a time for fulfill of responsibility, shall we look to our relationship or our friendship, etc.? Either without looking all these things, we will fill our responsibility. So दो प्रमुख बातें हैं यहाँ पर. मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगा, यदि किसी समय आप एक पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं और आपको काफ़ी समय के बाद पता चलता है कि जिस दोस्त से आप मिलने के लिए गए हो वो तो एक मतलब क्रिमिनल है, उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस है, पुलिस उसको ढूंढ रही है और उन्हीं के जो पुलिस स्टेशन भी उसको ढूंढ रहा है. ये सब बातें जानने के बाद क्या आप ऐसा चाहेंगे उससे मतलब दोस्ती करना, या फिर आप चाहेंगे कि उसको कानून के हवाले करना? तो कोई तो ये कहेगा कि ये मेरा दोस्त है, और कोई तो कहेगा चाहे वो दोस्त क्यों ना हो लेकिन कानून के नज़र में वो अपराधी है, और जब तक मेरे शरीर पे पुलिस की ये खाकी वर्दी है तो तब तक मैं अपराधी को कभी नहीं बख्शूंगा. सो some of you can think that my responsibility is first. He might be my friend, he might be my relative, he might be my parents, he might be my family members. But when there is now thinking of responsibility,
So I would give first priority to my responsibility. That is the reality of a follower, and one who is doing his real job. He would think like that. Otherwise, you know that many people are taking bribe and they leave the criminals, and many people are doing something when they see they are their relatives. Okay, so I'm not going to say all the Indian tradition. Today we are going to just look into American tradition, and the story has been taking place in New York. Okay, there were two friends. And they were playing together. They were staying together, and a long period. Okay, their teenage they have spent with each other, and one day they departed each other, and somebody went. Somebody went to west, and another fellow. Somebody means a man whose name is Bob. He went to west, and another fellow whose name is Jimmy Well, and he remained in New York. Okay. After 20 years, when they meet together, the situation or the circumstances absolutely different. यहाँ पे हम दो दोस्त को देखते हैं. ये दोनों दोस्त जो है बहुत आनंद के साथ बचपन उनका गुजरता है, और ये दोनों के दोनों दोस्त जो है और पूरे बचपन का समय जो है उन्होंने गुजार लिया, दोस्ती में होकर के आगे बढ़े. और लेकिन उनका जो टीन एज है पूरे ऐसे दोस्ती के साथ निकल जाता है, और एक समय आता है और उस समय दोनों दोस्त क्या करते हैं, डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह से, और एक दूसरे को ये जवाब देते हैं कि और 10-10:30 बजे 20 साल के बाद हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे. ऐसा कह कर के वो अलग अलग हो जाते हैं. एक का नाम जिमी वेल्स है एंड दूसरा का नाम है बॉब. ओके, बॉब तो चला जाता है. कहाँ पर बॉब तो चला जाता है और उसके वेस्ट की तरफ चला जाता है, और जिमी वेल्स जो है वही न्यूयॉर्क में रह जाता है और वहीं पे ही कार्य करता है. और जैसे बॉब गया और जाने के बाद कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो जाता है, यानी क्रिमिनल कार्य करने में वो रह जाता है. और उसके बाद फिर हम देखते हैं किसको जिम्मी को, वो आगे चल कर के एक पुलिसमैन बन जाता. बोथ ऑफ देम हैव डिपार्टेड ईच अदर एंड दे प्रॉमिस्ड, सो आफ्टर 20 years दे वुड मीट एट द सेम प्लेस. Okay, the same place from where they have departed, they are going to be depart each other. So the time have come. So Bob went to west and Jimmy remained there. Jimmy became a policeman and Bob became a criminal. Okay, he was doing something smuggling, and he was doing something different work. So after 20 years. Okay, after 20 years, but there is no time for reading of this chapter. I supposed to read and explain it, but the video will be so long. That is why I'm sorry. If you have books, so English Fairy, so you can read your book. Okay, and also you listen the story. So the story begins with a certain moment. What at the moment? That was the night time, everywhere dark, no light is there, very dim light is there. A long and a tall man with a slim face, long nose, and a different kind of eyes, having a long coat and a hat, having a cigarette, lighting of cigarette, and there was a shivering cold, and he was standing in a particular place. He seems to be waiting to somebody. Okay, he seems to be waiting to somebody. At the same time, there was a cop, there was a policeman, and he was also roaming here and there, and somehow he has seen to the man. Okay, he has seen to the man, and he came as he was about to reach,
And that man, whose name was Bob, he said, "Officer, don't worry, everything is okay. Officer, don't worry, everything is okay." He says like this, and both of them talk together. Okay, both of them talk together. यहाँ पर क्या होता है कि जैसे स्टोरी का शुरुआत होता है तो मतलब ऐसा है कि सन्नाटा समय होता है, जैसे कि अभी रात को 1 बजने वाली है ना, और वो उस समय जस्ट 10:30 बजने वाली के टाइम होता है, और जिस स्ट्रीट में एक लंबा सा पतला सा आदमी मतलब दिखने में कुछ अजीब सा दिखता है ना, हट पहना हुआ है और एक क्लॉक भी उसका हाथ में है, फिर सिगरेट लाइटिंग कर रहा है, और वहाँ पे ठंड हवा बह रही है, आसमान से भी लाइटें कम है, और उधर भी लाइट तो नहीं है, और हल्का सा लाइट है, डिम लाइट है, और एक अंधेरा वातावरण है वहाँ पे। ऐसी जगह पर एक व्यक्ति क्या हो रखा है, एक हार्डवेयर शॉप के सामने वो खड़ा है। जैसे वो खड़ा हुआ दृश्य को एक पुलिस देखता है, और दरअसल वो पुलिस और कोई नहीं होता, वो जिमी और वेल्स होता है, लेकिन वो अपना आइडेंटिफिकेशन फ़िलहाल वहाँ पे नहीं बताता, और ऐसे एक समय में आता है और वो उससे मिलता है, ठीक है ना। ऐसे एक समय पे होता है, वो दोनों मिलते हैं, और दोनों मिल कर के काफ़ी सारा, और जैसे वो मतलब पहुँचने वाला होता है तभी वो कहता है कि ऑफिसर सब कुछ ठीक ठाक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके है, आपको किसी भी तरह से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे और किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। He said like this, just I am here waiting for somebody, because before 20 years ago, so we had a oath and we had a promise, okay, that after 20 years we should meet each other in this particular place. So here the slim man, he started to saying that why he is there. ये स्लिम व्यक्ति जो है अब वो यही कहने लगता है कि वो क्यों यहाँ पर है, इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि वो अपने दोस्त को इंतज़ार कर रहा है, जिस दोस्त दोनों एक दूसरे को वादा किया कि हम अगले 20 साल के बाद क्या करेंगे, इसी सेम जगह पर हम मिलेंगे, इसी सेम जगह पर हम मिलेंगे, इसी सेम जगह पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। तो ये बातें क्या कहता है, ये बात, और ये जो खड़ा हुआ व्यक्ति पुलिसमैन को कहता है, तो पुलिसमैन ये जो इंतज़ार करता हुआ व्यक्ति कहता है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो बाड़ी है ना, ये रेस्टोरेंट हुआ करता था, और यहाँ पे हम हमेशा हम और इंतज़ार किया करते थे, और लास्ट डिनर हुआ था हमारा, होने के बाद हम एक दूसरे क्या हो गए, हम एक दूसरे चले गए। तो इसी तरह से दोनों के वार्तालाप आगे बढ़ता है। इन दिस वे बोथ ऑफ देम टॉक ईच अदर, and Jimmy asked different question, and means the policeman asked different question, and here Bob tries to give all this answer. So when he heard that 20 years, that was very long time. Jimmy heard of 20 years, and he said that 20 years is very long time, and he says that do you have confidence that he would be coming here and he would meet you with very confidently. The man Bob, he says that definitely he would come and meet me. In between, ऐसे बीच में मतलब वो पूछता है उसको, क्या तुम्हें बिल्कुल ही भरोसा है ना, क्या तुम्हें बिल्कुल भरोसा है कि तुम और वो आ जाएगा तुम्हें मिलने के लिए। तो ऐसे समय पर वो कहता मुझे बिल्कुल भरोसा है वो आ जाएगा मुझे मिलने के लिए, उसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, बस 10:30 बजेगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आएगा। तो ऐसे बीचों बीच वो दोनों के और भी बातचीत आगे बढ़ता है। तभी पुलिस उसको पूछता है तुम्हारा दोस्ती कैसा हुआ
और तुम क्या क्या करते हो, कैसे है, ये सब बातें। तो वो कहता है कि 20 साल पहले इसी शहर में ही हम पले बढ़े थे और हमारा दोस्ती बहुत अच्छी थी, और मैं अपना फॉर्च्यून को ढूंढने के लिए वेस्ट की तरफ चला गया और वो शायद यहीं पर ही रह गया, लेकिन हमारा दोस्ती बहुत अच्छा था, वो था, ये था। जैसे वो कह ही रहा था और कहते कहते क्या हुआ कि वो उसका चेहरा को बहुत अच्छा ठीक तरह से वो क्या कर लेता है, देख लेता है। यानी जिम्मी जो है बॉब का चेहरा को ठीक तरह से देख लेता है और देखते समय उसे वही चीज़ याद आता है कि कुछ समय पहले चिकागो के पुलिस जो है इसको तलाश रही थी और ये व्यक्ति जो है इलीगल काम करता है और ये व्यक्ति क्या है कि एक सही व्यक्ति नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं। सो व्हाइल दे वर टॉकिंग ईच अदर he recognized this person is not a good person. So because some months or some days ago the Chicago cop was wandering to him and they were trying to catch him, and because he was doing or is doing something illegal work, smuggling and etc etc, all these things. See, he was doing that. After looking his face, he recognized that very clearly. Okay. So then, both of them they talked, and Bob pointed to that particular restaurant, and confidentally he said that my friend definitely will come. Okay. So we have old partner. And he's very good fellow. And here we may see that man, Bob, he looks very handsome. He looks very handsome, and he had he wore some costlier dress, and having a hat, and having a cigarette, and having a clock. The things what he was using, those rich person used to use the same thing he is using. But at the same time, there is a common man, a policeman. He had not that much. He was not that much rich person, and he was not that much jewelry or something else. But just he became a cop or just he became a policeman. सो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है बॉब है, ये बहुत हैंडसम दिख रहा है और वो क्या मतलब डिफरेंट मतलब जो ड्रेस उसने पहन रखा है, बड़ा लंबा सा कोट उसने पहन रखा है, उसके हाथ में एक क्लॉक होता है और वो डायमंड का और कुछ मतलब उसके पहना हुआ कुछ होता है, और साथ ही साथ उसका जो लॉन्ग कोट ड्रेस है, हट है, इस तरह से मुँह में सिगरेट है। मतलब काफ़ी अमीराना व्यक्ति की तरह वो दिख रहा है और काफ़ी मतलब पैसा वाला व्यक्ति की तरह दिख रहा है। वाकई वो पैसा वाला व्यक्ति था, वाकई वो पैसा वाला व्यक्ति था। अपने फॉर्च्यून को ढूंढने के लिए वेस्ट में चला गया और वो और कई डिफरेंट काम करके वो क्या करता है, पैसा कमाया और अभी आया अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था 20 साल के बाद आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों दोस्त जो है अपने प्रॉमिस के प्रति वफादार होते हैं। सो वी सी हियर बोथ फ्रेंड्स, okay, they are honest for their promise. They have promised each other to meet after 20 years at the same time 10:30 or night. Okay, so night time is very something, see there is little bit darker. Okay, there is a little bit darker, and sorry for this region, it is going to be 1 o'clock. And especially during the daytime I have no time to make videos because I'm busy for teaching and doing my coaching everything, but I got little bit time in night after 10 o'clock only, so that there is something happening. So that is why I'm always forcing you to subscribe, है ना। So because
I'm working hard, so that I'm telling you. Anyway, so after talking them, and as I told you, Jimmy recognized him very clearly, and he said, "Okay, gentlemen, goodbye. So maybe your friend will come. Okay, maybe your friend will come. If you have a, such or if you have a कॉन्फिडेंस, so definitely your friend will come." तो इस प्रकार दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद फिर क्या होता है कि वो ठीक है, आप सच में अगर आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली कोई बंदा आपसे मिलने आएगा, आपका दोस्त आपको मिलने आएगा। इस प्रकार ये दोनों बातचीत करें और बातचीत करने के बाद पुलिस जो है वहाँ से चला जाता है। आखिरकार वो पुलिस कौन होता है? वो पुलिस जिम्मी होता है, पर बॉब को पता नहीं है कि वो उसका दोस्त है। जिम्मी भी आया था अपने दोस्त को मिलने के लिए और यहाँ पे बॉब भी था अपने दोस्त को मिलने के लिए। दोनों अपना प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिम्मी जो है अपना दोस्त को वहाँ से उस समय मिल तो लेता है अपना परिचय बिना बताए, और वो चला जाता है, कहता है कि डेफिनेटली आपका दोस्त आएगा। तो इस प्रकार से 10:30 बजने वाला होता है, तभी एक व्यक्ति अचानक से वहाँ पे आ जाता है। तो एक व्यक्ति जैसे अचानक से वहाँ पे आ जाता है, आने के बाद उसे लगता है कि ये जिम्मी आ गया। बॉब को लगता है कि वो जिम्मी आ गया, और ये दोनों के बीच में बातचीत हुआ, और बातचीत होने के बाद ये एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर बातचीत होते होते थोड़ा सा अटपटा लगता है उसको कि ये तो मेरा दोस्त तो हो ही नहीं सकता। हालांकि 20 साल गुजर जाता है, लेकिन चेहरा तो नहीं बदलता है ना। चेहरा में थोड़ा बहुत मुरझायापन आ जाता है। देयर विल बी लिटिल बिट चेंजेस। Somebody different person come here to meet Bob, because Jimmy went from there with having knowledge that Bob is there and he is a criminal. So he sent to another person to meet him as become Jimmy, and that fellow came and meet him just like he being just like Jimmy, and both of them, they embraced each other, and they have talked each other, but now they started to talk. The two men started off the street, okay, arm in arm, both of them, they armed each other. दोनों व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, अब एक दूसरे के आर्म के ऊपर हाथ रख करके जाते हैं। The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline his history of his career. The other, sombreros in his overcoat, listened with interest. At the corner stood a drugstore and a brilliant with electric light. When they came into the glare, each of them turned to gaze upon the other face. So both of them were talking and they were coming together. दोनों के दोनों बड़े आनंद से एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रख के वो आ रहे थे बात करते हुए, और बड़ी कॉन्फिडेंटली, और बॉब को लग रहा था कि मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए आया है। दरअसल पहले जो व्यक्ति था वही था और उसका दोस्त जिम्मी, और फिर वो अपना जो खुशहाली बातें सुनाता है। फिर साथ ही साथ वो क्या करता है, उसका जो समय है, मतलब वेस्ट में जाकर के कैसे रहा और कैसे सफलता को प्राप्त करी, उस सारे बातें को वो क्या करता है, बताता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा अंधेरा से ये लोग उजाले की तरफ आ गए, और उजाले की तरफ आने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बोथ ऑफ देम apart from each other. And now Bob understood that he is not Jimmy. Okay, he is not Jimmy. So finally what happened there? Now that fellow, he might be confessed that he is not Jimmy, but he was sent by Jimmy.
तो दोनों एक दूसरे को देखते आ रहे, तू तो हो नहीं सकता जिम्मी, और इस प्रकार बॉब इनकार करता है। हालांकि 20 साल गुजर जाता है तो भी चेहरा में इतना तो परिवर्तन नहीं होता है ना। किसी भी तरह से हम पहचान लेते हैं किसी व्यक्ति को। तो ये व्यक्ति पहचानता है, वो कहता है कि तू तो जिम्मी हो नहीं सकता, इस तरह की बातें होती है। बातें होने के बाद फिर वो भी स्वीकार लेता है कि वो जिम्मी नहीं है, और फाइनली एक लेटर निकालता है और उसको दिखाता है। ओके, एक लेटर निकालता है, उसको दिखाता है। आफ्टर कॉन्फेसिंग दैट ही इज नॉट जिम्मी, एंड ही टुक्स अ लेटर एंड हैंड ओवर टू दैट मैन बॉब। Okay, now Bob read that there is written something that actually the one who just left him, he was his original friend, and he said that I am the Jimmy. I have come to meet you. मैं ही वो जिम्मी हूँ और मैं तुम्हें मिलने के लिए आया था, but before giving my identification, I recognized you, that the Chicago police is searching you, that I have seen and I experienced. So now you are group of criminal and I am group of cop police. Okay, so that is why I didn't do it with myself. मतलब मैं अपनी आप में गिरफ्तार आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी दुनिया और मेरा दुनिया अलग हो चुका है। बचपन में हम एक ही प्रकार का काम करते थे, एक ही साथ खेलते थे, एक ही मतलब जो काम करना होता था हम एक ही ढंग का काम करते थे। लेकिन आज तुम्हारा कार्य अलग हो चुका है, मेरा कार्य अलग हो चुका है, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ही तुम्हें वहाँ पे गिरफ्तार करूँ, है ना, क्योंकि तुम क्रिमिनल हो। पर और इसीलिए मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे हाथ में भेजा हूँ, कहता है। और कहने के बाद बॉब को वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी वहाँ पर समाप्त होता है। और ख़ास करके हमें ओ हेनरी यहाँ पे ये समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से क्या नहीं करें, मुँह ना मोड़ लें। चाहे हमारा कोई भी हो, पर जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, तो हमें इस बात को निभाना पड़ेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट तो नहीं कहूँगा क्योंकि 1:10 हो गया। हैव ए गुड डे। ओके।